سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار بھی کورونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہائی کورٹ کے جسٹس اسد جاوید موذی وبا سے متاثر ہوئے ہیں۔ شہر میں 24 گھنٹوں میں 309 نئے مریض رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ ایک روز میں موذی وائرس 21 زندگیاں نکل گیا ہے۔ شہر میں کورونا کی دوسری لہر تیزی سے پھیل رہی ہے۔ 24 گھنٹوں میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور جسٹس امجد جاوید سمیت 309 نئے مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو فلو اور بخار کی شکایت پر ان کا کورونا ٹیسٹ کروایا گیا، جو مثبت آیا۔ ٹیسٹ مثبت آنے پر وزیر اعلیٰ نے خود کو قرنطینہ کر لیا۔ ہائی کورٹ کے جسٹس اسد جاوید نے بھی کورونا میں مبتلا ہونے پر خود کو گھر میں قرنطینہ کر لیا ہے۔ شہر میں مثبت کیسز کی شرح 9.49% ہو گئی ہے۔ ایک روز میں مزید 21 اموات نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ شہر کے مختلف ہسپتالوں میں 73 مریضوں کی حالت تشویشناک ہونے پر انہیں وینٹیلیٹر پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ کورونا وائرس میں تیزی سے اضافہ۔ سعودی عرب کے بعد عمان اور کویت نے بھی بین الاقوامی پروازوں پر پابندی لگا دی ہے۔ پاکستان ایوی ایشن نے برطانیہ سے آنے والی پروازوں پر ایک ہفتے کے لیے پابندی عائد کر دی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ پاکستان نے برطانیہ سے آنے والی تمام پروازوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ پابندی کا اطلاق 29 دسمبر تک ہوگا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پابندی کا اطلاق کل رات 12 بجے سے 29 دسمبر تک ہوگا۔ پابندی کا اطلاق برطانیہ کے لیے 10 روز تک سفر کرنے والے مسافروں پر بھی ہوگا۔ برطانیہ میں داخلے کے بغیر پاکستان آنے والے ٹرانزٹ مسافر پابندی سے مستثنی ہوں گے۔ وزٹ اور عارضی ویزا کے حامل پاکستانیوں کو 72 گھنٹے پرانی کورونا رپورٹ پر آنے کی اجازت ہوگی۔ ان مسافروں کو پاکستانی ایئرپورٹ پر سرکاری خرچ پر PCR ٹیسٹ کرانا لازم ہوگا۔ گھر پر 7 دن قرنطینہ میں بھی رہنا ہوگا، جبکہ 22 دسمبر سے آنے والے تمام مسافروں کو پاک ٹریک ایپلیکیشن کا استعمال لازمی کرنا ہوگا۔ پابندی کے خاتمے سے متعلق NCOC اجلاس میں 28 دسمبر کو نظر ثانی بھی کی جائے گی۔ کویت حکومت کی جانب سے لگائی گئی بین الاقوامی پروازوں پر پابندی 1 جنوری 2021 تک لاگو رہے گی۔ کارگو فلائٹس کو اس پابندی سے استثنا حاصل ہوگا۔ انڈے ڈبل سینچری پر ناٹ آؤٹ، قیمت میں مسلسل اضافہ۔ سرکاری نرخ 199 روپے درجن، اوپن مارکیٹ میں درجن انڈوں کی قیمت 220 روپے وصول کی جا رہی ہے، جبکہ دیسی انڈے 400 روپے درجن تک پہنچ چکے ہیں۔ اس وقت جو ہے تمام چیزیں جو ہے کھانے پینے کی جتنی بھی اشیاء ہیں وہ اس وقت بہت ہائی ریٹ پہ پہنچ چکی ہیں، اور بالخصوص جو انڈے ہیں وہ بھی جو ہے نا مہنگے کر دیے گئے ہیں۔ انڈے بہت مہنگے ہو گئے ہیں، کھان پینے والی چیزیں جنیاں بھی ہیں نا ساریاں مہنگیاں ہو گئی ہیں، بہت مشکل ہو گیا ہے سسٹم چلانا۔ غریب عوام ہے، کمانے کے لیے اتنے پیسے ہوتے نہیں ہیں، نہ اتنی سیلری ہیں، فولڈ کیسے کرے؟ انڈوں کا ریٹ دیکھ لیں کدھر پہنچ گیا ہے۔ ہر چیز ہی مہنگی ہو گئی، اللہ والے کوئی چیز نہیں سستی رہے گی بھائی جی، یہ ہوں اللہ کی ذات ہی ہے جو بھی کرے گی۔ جبکہ انصافی دور حکومت میں شہر کے متوسط طبقے کے لیے چھوٹی گاڑی رکھنا بھی دشوار ہو چکا ہے۔ گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں، اور اسپیئر پارٹس کی قیمتوں میں 100% تک کا اضافہ ہو گیا ہے۔ شہر کی آٹو اسپیئر پارٹس کی مارکیٹیں بھی مہنگائی سے متاثر ہو گئیں۔ گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ہوا ہے۔ پسٹن 2200 روپے سے بڑھ کر 4000 روپے کا ہو گیا، جبکہ اسٹیئرنگ ٹنکی 3500 سے بڑھ کر 7500 روپے۔ گاڑیوں کے ویل کیپ 200 روپے فی سیٹ مہنگے ہو گئے۔ اسی طرح کلچ پریشر پلیٹس کی قیمت 2800 سے بڑھ کر 7200 روپے تک جا پہنچی ہے۔ گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس کی قیمتیں بڑھنے سے متوسط طبقہ پریشان ہے۔ شہریوں نے سٹی 42 سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اب تو چھوٹی گاڑی رکھنا اور اس کی مینٹیننس برداشت سے باہر ہے۔ یکساں نظام تعلیم کی پہلی حکومتی پالیسی سٹی 42 نے حاصل کر لی ہے۔ نئے یکساں نظام تعلیم میں 5ویں جماعت تک مجموعی کتابیں 30 ہوں گی۔ یکساں نظام تعلیم میں 5ویں جماعت تک ریاسی تمام تعلیمی اداروں میں انگلش میں پڑھائی جائے گی۔ یکساں نظام تعلیم کی پالیسی 2020 کے مطابق سرکاری اسکولوں میں بھی اب پری 1 سے 5ویں جماعت تک ریاضی انگلش میں پڑھائی جائے گی، اور دوسری جماعت سے ہی بچوں کو تمام تعلیمی اداروں میں اسلامیات کا مضمون پڑھایا جائے گا۔ اس سے قبل اسلامیات کا مضمون تیسری جماعت سے بچوں کو پڑھایا جاتا تھا۔ جنرل سائنس، سوشل اسٹڈی اور جنرل نالج کے تمام مضامین تمام تعلیمی اداروں میں اردو میں ہوں گے۔ نئے یکساں نظام تعلیم میں مجموعی کتابیں 30 ہوں گی۔ نئے یکساں نظام تعلیم اردو میں 18 اور انگلش میں 12 مضامین پڑھائے جائیں گے۔ پہلے قومی نصاب تعلیم میں 5ویں جماعت تک کل کتابیں 28 تھیں، اور پہلے قومی نظام تعلیم میں انگلش میں 5 اور اردو میں 23 مضامین پڑھائے جا رہے تھے۔ جبکہ ٹھوکر نیاز بیگ پر جدید بس ٹرمینل کا تخمینہ تیار کر لیا گیا ہے۔ 3 ارب روپے لاگت آئے گی۔ محکمہ ٹرانسپورٹ نے بس ٹرمینل کے 3 ڈیزائن بھی تیار کر لیے ہیں۔
ज़राए के मुताबिक जदीद बस टर्मिनल के तैयार करदा डिजाइन वज़ीर आला को पेश किए जाएंगे। ठोकर न्याज़बेग पर मौजूद 250 कनाल पर मुश्तमिल टर्मिनल को ही नए जदीद बस टर्मिनल में तब्दील किया जाएगा। जदीद बस टर्मिनल की तामीर पायलट प्रोजेक्ट है, जिसकी तकमील पर दीगर टर्मिनल्स को भी जदीद तर्ज पर फिर से तामीर किया जाएगा। नए जदीद बस टर्मिनल की तामीर का मकसद शहरियों को स्टेट ऑफ द आर्ट सफरी सहूलियात फराहम करना है। नए बस टर्मिनल के डिजाइन में एयर कंडीशन वेटिंग एरिया, स्टेट ऑफ द आर्ट वाशरूम्स, जदीद डिजिटल टिकटिंग बूथ, कैफेटेरिया, बसी पार्किंग, स्टेट ऑफ द आर्ट सीवरेज सिस्टम समेत दीगर सहूलियात शामिल हैं। रावी किनारे नया शहर आबाद करने के मंसूबे पर पेशरफ। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मंसूबे के पहले फेज का तखमीना लागत तैयार कर लिया है। नए शहर को आबाद करने के लिए पहले फेज पर 939 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। मंसूबे के लिए 190 अरब रुपए मालियत की जमीन खरीदी जाएगी। मंसूबे के अतराफ मौजूदा सड़कें और पुलों की तोसी के लिए 17 अरब रुपए खर्च होंगे। रावी शहर में नई सड़कें और पुल तामीर करने के लिए 63 अरब रुपए का तखमीना है। दस्तावेजात के मुताबिक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और वाटर डाइवर्शन पर 80 अरब रुपए खर्च होंगे। मेट्रो बस और दीगर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स की तोसी समेत कंसल्टेंसी पर 172 अरब रुपए रखे जाएंगे। रावी किनारे नया शहर आबाद करने पर डेवलपमेंट चार्जेस की मद में 415 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। रावी किनारे डेवलपमेंट चार्जेस 24 लाख फी कनाल का तखमीना है। पंजाब हेल्थ फैसिलिटेशन मैनेजमेंट कंपनी के अदम दिलचस्पी से डिस्पेंसरियों की हालत है ज़ार। टाउनशिप की बेशतर डिस्पेंसरियों पर खांसी का शरबत भी दस्तयाब नहीं है। PHFMC बुनियादी अद्वियात की फराहमी में नाकाम हो गई है। पंजाब हेल्थ फैसिलिटेशन मैनेजमेंट कंपनी के अदम दिलचस्पी के बाद डिस्पेंसरी पर मुतअद्दिद तिब्बी सहूलियात मैसर नहीं। PHFMC के सुपुर्द डिस्पेंसरी में अद्वियात का फुकदान है। रोजाना दर्जन अफराद खांसी, नज़ला और जुकाम की शिकायत के साथ डिस्पेंसरी का रुख करते हैं, मगर डिस्पेंसरी पर खांसी का शरबत नायाब हो गया है। गवर्नमेंट टाउनशिप C1 और C2 डिस्पेंसरी में खांसी का शरबत खत्म हुए कई दिन बीत गए। डिस्पेंसरी में डॉक्टर्स तो ड्यूटी पर मामूर, मगर अद्वियात की कमी से मरीज मायूस वापस लौटने लगे हैं। सफाई में नाकामी की खफत LWMC ने अपना गुस्सा तुर्क कंपनियों पर उतार दिया। पुलिस से मिलकर तुर्क कंपनियों की वर्कशॉप्स पर धावा बोल दिया। अफसर से बदतमीजी की, अमला बेदखल कर दिया। गाड़ियों और मशीनरी पर कब्जा करके सफाई इंतजाम भी खुद संभाल लिया। कंपनियों का मामला सफारती सतह पर उठाने का ऐलान। LWMC की तरफ से ये जो छापा मारा गया है, जो हमारे कमर्शियल एक्टिविटीज़ को नुकसान पहुँचाएगा, इसी तरह की हरकतें इस मुल्क में गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट को रोकेगा, बल्कि तुर्की और पाकिस्तान के ताल्लुकात पर मनफी असर पड़ेगा। हम अफसोस के साथ ये कहना चाहते हैं कि LWMC की मैनेजमेंट के साथ कानूनी कार्रवाई करेंगे और अपना हक लेंगे। इस तरह की नामुनासिबत हरकतें हमारे दिलों में जो पाकिस्तान और उसके शहरियों के लिए जो प्यार है वो कभी भी कम नहीं हो सकेगा। पाकिस्तान तुर्की भाई भाई जिंदाबाद। जबकि अदाकारा मीरा का आईफोन गुम गया है। अदाकारा का फोन ढूंढने वाले के लिए 5 लाख रुपए का इनाम। आईफोन, और अगर किसी को भी मेरा फ़ोन मिले मैं 5 लाख रुपया इनाम दूंगी। सेशन कोर्ट में क्रिकेटर बाबर आजम के खिलाफ अंदराजे मुकदमा की दरख्वास्त पर समाअत हुई। हुमैजा मुख्तार ने जिनसी हरासानी केस के बाद धमकी आमेज मैसेज भेजने पर बाबर आजम के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज करवा दिया है। एडिशनल सेशन जज नुमान मोहम्मद नईम की अदालत में बाबर आजम के खिलाफ अंदराजे मुकदमा की दरखास्त पर समाअत। हुमैजा मुख्तार ने बाबर आजम के खिलाफ धमकी आमेज मैसेज भेजने पर एक और अंदराजे मुकदमा की दरखास्त दायर कर दी। बाबर आजम के वकील ने अदालत में कहा कि खातून की जानिब से दरखास्त वापस लेने के अवज पैसों का तकाजा किया जा रहा है। हमने एक पैसा भी नहीं देना। मुकदमा दर्ज होता है तो हो जाए, लेकिन ब्लैकमेल नहीं होंगे। हुमैजा मुख्तार के वकील शेख सखावत ने कहा कि बाबर आजम के वकील का वकालतनामा जाली है। बाबर आजम का जो पावर ऑफ अटॉर्नी अदालत में पेश किया गया वो भी जाली है। बाबर आजम 20 तारीख को न्यूजीलैंड रवाना हुए, जबकि पावर ऑफ अटॉर्नी 21 तारीख का है। हुमैजा मुख्तार के वकील ने बताया कि मामला तय होने के करीब है। हुमैजा मुख्तार के वकील की इस्तदा पर अदालत ने इंदराज मुकदमा और धमकी आमेज मैसेज की दरख्वास्त को यकजा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने दोनों दरखास्तों पर हुमैजा मुख्तार के वकील को 23 दिसंबर को दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत कर दी, जबकि बाबर आजम के वकील ने इनके मुवक्किल का बैरून मुल्क जाने का रिकॉर्ड तलब कर लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान शहर की खूबसूरती खत्म होने पर बरहम हो गए। कहते हैं लाहौर शहर के कल्चर और खूबसूरती का बेड़ा गर्क कर दिया गया है, और अगर अभी एहतियात ना की गई तो आने वाली नस्लें हमें कभी माफ नहीं करेंगी।
चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने मुबशिर अल्माज की दरख्वास्त पर समाअत की। उन्होंने रिमार्क्स देते हुए कहा कि शहर की खूबसूरती को उजाड़ कर अजब तमाशा बनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब भी बतौर चेयरमैन LDA इसके जिम्मेदार हैं। अगर शहर की खूबसूरती को उजाड़ने वाला एक पकड़ा जाता तो बाकी बाज आ जाते। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने कहा कि शहर में ग्रीन एरियाज खत्म कर दिए गए हैं, कोई पूछने वाला नहीं। सड़कों पर पुराने दरख्त थे जो उजाड़ दिए गए। जो लोग पुराने लाहौर को जानते हैं, मौजूदा सूरत-ए-हाल उनके लिए तकलीफ दे है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि शहर के ग्रीन एरिया को खत्म करके तजावुज़ात कायम कर दी गई हैं। जगह जगह गैर कानूनी तामीरात की वजह से शहर का हुस्न तबाह हो गया है। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की कि अदालत ग्रीन पार्क खत्म करने और तजावुज़ात के मुर्तकिब अफसरान और अफराद के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे। चीफ जस्टिस के इस्तफसार के बावजूद LDA का वकील तसल्ली बख्श जवाब न दे सका और जवाब के लिए मोहलत की इस्तदा की। चीफ जस्टिस ने LDA के वकील को हुक्म दिया कि वो LDA के तमाम चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और DG LDA समेत दीगर अफसरान का तयन करके रिपोर्ट पेश करे। अदालत ने केस की समाअत मंगल तक मुलतवी करते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। जलील अहमद शरकपुरी ने स्पीकर पंजाब असम्बली को मशरूत इस्तीफा भिजवा दिया है। दीगर अराकीन असम्बली के इस्तीफे मंजूर करते वक्त उनका इस्तीफा भी मंजूर किया जाए। रुकने सूबाई असम्बली की जानिब से ये इस्तदा की गई है। पंजाब असम्बली में कायदे पे इख्तलाफ हमजा शहबाज ने कहा है कि हुक्मरानों की 1000 कोशिशों के बावजूद पार्टी मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में मुत्तहिद है। नए पाकिस्तान वालों का जल्द यौम हिसाब आने वाला है। आटा, चीनी और पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफे की मजम्मत करते हैं। पंजाब असम्बली में कायदे पे इख्तलाफ हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। इजलास में खलील ताहिर सिंधु, ख्वाजा इमरान नज़ीर, मलिक नदीम कामरान, चौधरी शहबाज अहमद, मंशा भट्ट समेत अरकान असम्बली ने शिरकत की। इस मौके पर हमजा शहबाज ने कहा है कि नेकोकारों ने आटा चीनी में मुलविस लोगों को NRO और दीगर रातों रात मुल्क से बाहर भिजवा दिया। मईशत तबाह होकर रह गई है। पाकिस्तान अनाड़ियों और कन्फ्यूज्ड हुक्मरानों के हत्थे चढ़ गया है, जिसकी सजा आवाम काट रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द मुल्क में नून लीग की क़यादत में हकीकी जमहूरियत परवान चढ़ेगी। मैं वसौक से कह सकता हूँ कि जब तारीख में पाकिस्तान की डूबती हुई मईशत की कहानी लिखी जाएगी तो इसमें नैब और इसका इमरान खान न्याजी के साथ गठजोड़ सरे फहरिस्त होगा। उन्होंने मजीद कहा कि मुझे गरीब आदमी की बेबसी पर रोना आता है। गंदम और चीनी में खुद कफिल मुल्क में दोनों चीज़ें महंगी होने के बावजूद दस्तयाब नहीं। फिरदौस हाशिकवान के अपोजिशन पर ताबड़तोड़ हमले। कहा मौलाना फजलुर रहमान को तो मौलाना शेरानी ने ही आईना दिखा दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि राजकुमारी हुकूमत को धमकियों की बजाय माल पानी का हिसाब दे। शेरानी साहब का आपने स्टेटमेंट देख लिया है, मीडिया पे चल रही है, जिन्होंने उन्हें सर्टिफाइड झूठा करार दे दिया। तो लिहाजा मौलाना साहब जब दिन बुरे आ जाएं तो फिर अपने भी साथ छोड़ जाते हैं, तो साया भी साथ नहीं देता। तो मौलाना साहब का साया जो इसको मौलाना शेरानी साहब हमेशा ढाल बन के उस भारी भरकम साये की हिफाजत करते थे, तो वो खुद जो है उन्होंने मौलाना के बयानिए से लातहल्की का ऐलान कर दिया है। पंजाब असम्बली ने शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल ऑर्डिनेंस की मुद्दत में तोसी कर दी है। अपोजिशन ने वजीर आजम के घर को 12 लाख रुपए में रेगुलराइज करने पर एतराज उठाया तो वजीर कानून बोले जाती उम्रा का नक्शा भी मंजूर नहीं है। अपोजिशन ने ऐवान में हुकूमत के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास 2 घंटे 15 मिनट ताखीर से शुरू हुआ। इजलास में शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल, मुकामी हुकूमत और वर्कर्स की शराकत, कंपनियों समेत 5 ऑर्डिनेंस की मुद्दत में 3 माह की तोसी कर दी गई। मुस्लिम लीग नून के समीउल्ला खान ने नुक्ता एतराज पर बात करते हुए कहा कि नैब के बाद हुकूमत सियासी इंतकाम के लिए अब एंटी करप्शन और FIA को इस्तेमाल कर रही है। सैफुल मलूक खोखर का घर गिराने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम के बनीगाला के घर को 12 लाख रुपए में रेगुलाइज कर दिया गया है। इस पर ज़ेरे कानून राजा बशारत का कहना था कि जाती अमरा का नक्शा भी मंजूर नहीं। अगर ओपोजिशन ने ये रवैया इख्तियार किया तो मजीद कई बातें खुल जाएंगी। पंजाब असम्बली के इजलास में ओपोजिशन की जानिब से हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया गया। ओपोजिशन के मेंबरान ने अपनी नशिस्तों से उठकर वजीर आजम के खिलाफ एहतजाज और नारेबाजी की। इजलास मंगल की दोपहर तक मुलतवी कर दिया गया है। इलाही अफसरशाही पर बरहम हो गए। वजीराबाद कार्डियोलॉजी का मंजूर शुदा बजट 6 माह से नहीं दिया जा रहा। स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से ये कहा गया। 200 मरीज ऑपरेशन के इंतजार में हैं। हुकूमत क्या कर रही है? चौधरी परवेज इलाही की जानिब से ये भी कहा गया कि अगर असम्बली के फैसलों को नहीं मानना
तो इस असेंबली का क्या, इसे बंद कर दिया जाए? एफबीआर ने पंजाब फूड अथॉरिटी का 4 साला विद होल्डिंग टैक्स ऑडिट शुरू कर दिया। एफबीआर ने फूड अथॉरिटी से अखराजात, कॉन्ट्रैक्टर्स को की गई अदायगियों का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया है। एफबीआर ने पंजाब फूड अथॉरिटी का विद होल्डिंग टैक्स ऑडिट शुरू करके इस हवाले से रिकॉर्ड भी तलब कर दिया है। एफबीआर ने पंजाब फूड अथॉरिटी का साल 2016 से साल 2019 तक का विद होल्डिंग टैक्स ऑडिट शुरू किया है। एफबीआर ने पंजाब फूड अथॉरिटी से अखराजात, कॉन्ट्रैक्टर्स को की गई अदायगियों, मुलाजमीन की तनख्वाहों पर टैक्स कटौती का जायजा लेने के लिए ऑडिट शुरू किया है। एफबीआर ने पंजाब फूड अथॉरिटी से गुज़श्ता 4 साल के अखराजात, अदायगियों, मुलाजमीन की तनख्वाहों का रिकॉर्ड मांग लिया है। खोखर पैलेस की मिसमारी के लिए एलडीए ऑपरेशन और कार्य सरकार में मुदाखलत का ये मामला है। सैफुल मलूक खोखर और अफजल खोखर जमानत करवाने सेशन अदालत पहुंच गए। अदालत ने दोनों रहनुमाओं की अबूरी जमानत 13 जनवरी तक मंजूर कर ली है। थाना नवाब टाउन पुलिस ने अफजल खोकर, सैफुल मलूक खोकर और फैसल अयूब खोकर समेत दीगर के खिलाफ कार सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज किया था। खोकर पैलेस के खिलाफ एलडीए ऑपरेशन में मुदाखलत पर एफआईआर दर्ज की गई थी। एडिशनल सेशन जज सैफुल्लाह सोहेल ने दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। अदालत ने अफजल खोकर, सैफुल मलूक खोकर और फैसल अयूब खोकर की 13 जनवरी तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अहाता अदालत में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अफजल खोकर और सैफुल मलूक खोकर का कहना था कि एलडीए ने गैर कानूनी तौर पर खोकर पैलेस को गिराने की कोशिश की। खोकर पैलेस की अराजी और तामीर का रिकॉर्ड बिल्कुल दुरुस्त है। सुप्रीम कोर्ट को इस अराजी का रिकॉर्ड पेश कर चुके हैं। हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इमरान खान की हुकूमत लीगी रहनुमाओं के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान के खिलाफ जलसों और रैलियों में शिरकत पर मुकदमा। सेशन अदालत ने पीपल्स पार्टी के 8 कारकुनान की अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। रैली में शिरकत पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान के खिलाफ थाना सिविल लाइंस में एफआईआर दर्ज हुई। एडिशनल सेशन जज सैफुल्लाह सोहेल ने कारकुनान की जानिब से जमानत के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत की। कारकुनान की जानिब से एडवोकेट मियां शाहिद अब्बास पेश हुए। अदालत ने पीपल्स पार्टी के कारकुन आरिफ खान, आगा अब्बास काजमी, मैडम शाहिदा जबी, शहनाज महमूद भट्टी, मलक अमजद अवान, रुबीना सुहेल की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। कारकुनान का अहाता अदालत में गुफ्तगू करते हुए कहना था, कारकुनान को रैलियों और जलसों में शिरकत से नहीं रोका जा सकता। हम सियासी मुकदमात और गिरफ्तारियों से नहीं डरते। हुकूमत की जानिब से अपोजिशन के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज कराए जा रहे हैं। हुकूमत नाकाम हो चुकी है। कारकुनान ने जियो भुट्टो के नारे भी लगाए। आगे बढ़ते हैं। रिंग रोड से मुलाहिका देहात के लिए अच्छी खबर है। जिले इंतजामिया और एक्सो नोबल पाकिस्तान लिमिटेड के माबैन देहातों को रेनबो विलेज में तब्दील करने की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए हैं। नीले, पीले, सब्ज, गुलाबी और दीगर रंगों के ये मनाजिर रिंग रोड से मुल्का देहात 1.5 पिंडी के हैं, जिसे सोहना लाहौर मुहिम की मुनासबत से दीदा जेब रंगों से मुज़य्यन कराने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया। कमिश्नर लाहौर जुल्फकार अहमद घुम्मन ने CEO एक्सो नोबल पाकिस्तान मुबशर अहमद, एडिशनल कमिश्नर अमान अनवर कदवाइस में दीगर के हमरा रेनबो विलेज 1.5 पिंडी का दौरा किया और एक दीवार पर पेंट भी किया। लाहौर ने कहा कि रिंग रोड से मुल्का देहात को खूबसूरत बनाने का आगाज कर दिया गया है, जबकि मजीद पॉइंट्स भी मुंतखब कर लिए गए हैं। लाहौर में पहले भी हमने काम शुरू किया हुआ है। DC साहब ने काफ़ी इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, उनकी टीम मेहनत कर रही है। इसके अलावा हमने कुछ और पॉइंट्स भी जो है वो आइडेंटिफाई किए हुए हैं। वो CEO साहब से इनके साथ बैठ के इनके तावन से जो है उसके ऊपर हम पहले इसको कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद उनके ऊपर हमारा काम शुरू होगा। CEO एक्सो नोबल पाकिस्तान मुबशर अहमद कहते हैं, जो देहात हमारे हवाले किया जाएगा इसको खूबसूरत बनाएंगे। वी आर कमिटेड टू द सिटी ऑफ लाहौर। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह आगे और भी जगहों पे सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करेंगे और मुख्तलिफ जगह जो और होंगी उनको और बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट दोहा शाकर कहती हैं, तहसील कैंट के देहातों को दीदा जेब बनाने का सिलसिला जारी रखेंगे। एक पिंड था जो है कि बहुत ही जो है एक अजीब सा लुक देता था बाहर से। अब एयरपोर्ट से जो भी आएगा जाएगा, जितनी भी ट्रैफिक होती है यहाँ पर, वो आते जाते इस खूबसूरत से जो है रेनबो विलेज को देखेंगे और इसी तरह के और इनिशिएटिव जो है आगे लिए जाएंगे। 1.5 पिंडी देहात के नंबरदार राना मोहम्मद जाफर ने कहा कि देहातों को खूबसूरत बनाने का जिले इंतजामिया का इकदाम काबिल तहसीन है। इसको मजीद मेंटेनेंस इसकी करनी है, बजाय कि इसको ऐसे रंग बिरंगा करके कल को छोड़ के चला जाए। इनकी स्ट्रीट लाइट पिछले 4 साल से बंद पड़ी हुई है।
जिस पे कोई काम नहीं हो रहा, ये रात को ऐसे लगता है जैसे ये जंगल है। कबल अजीम लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी के हेडक्वार्टर में असिस्टेंट कमिश्नर कैंट जोहा शाकर और सीईओ एक्जो नोबेल मुबशर ने मुफाहमती यादाश्त पर भी दस्तखत किए और मिशन सोना लाहौर को आगे बढ़ाने का अयादा किया। रिंग रोड से मुल्का देहातों को दीदा ज़ेब रंगों से मुज़य्यन करने का पहला पायलट प्रोजेक्ट तो मुकम्मल हो गया। अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहे तो सोना लाहौर का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सकता है। कैमरामैन यावर भट्टी के साथ राउदिल शाद हुसैन, सिटी 42। बेल्जियम के ट्रेड कमिश्नर आबिद हुसैन ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया और सदर मियां तारिक मिसबा समेत दीगर ओहदेदारान से मुलाकात की। आबिद हुसैन ने कहा कि पाकिस्तानी ताजर बेल्जियम के फार्मास्यूटिकल और जेम एंड ज्वेलरी के शोबों में सरमायाकारी और वहाँ के ताजरान से मुश्तरका मनसूबा साजी करके वसी पैमाने पर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ऐवान सनत और तिजारत में मुनक़िदा अहम मीटिंग में लाहौर चैम्बर के सदर मियां तारिक मिसबा, सीनियर नायब सदर नासिर हमीद खान और नायब सदर ताहिर मंसूर चौधरी समेत दीगर कायदीन शरीक हुए। लाहौर चैम्बर में मुलाकात के मौका पर बेल्जियम के ट्रेड कमिश्नर आबिद हुसैन ने कहा कि एक पाकिस्तानी कंपनी पहले ही बेल्जियम के फार्मास्यूटिकल सेक्टर में काम कर रही है, मगर मजीद पाकिस्तानी कंपनियों को वहां आना चाहिए। उन्होंने लाहौर चैम्बर के ओहदेदारान को आगाह किया कि गवादर बंदरगाह की इब्तदाई डेवलपमेंट और पोर्ट कासिम की तामीर बेल्जियम की कंपनियों ने की है। एसएसपी एडमिन लाहौर उस्मान एजाज बाजवा ने शोहदा पुलिस की फैमिलीज में स्कॉलरशिप चेक्स तकसीम किए। एसएसपी एडमिन लाहौर ने मजमूई तौर पर 70 लाख से ज़ायद मालियत के स्कॉलरशिप चेक्स तकसीम किए। शोहदाए एपीएस गुलाम मुस्तफा के बच्चों को 7 लाख, शहीद सब इंस्पेक्टर तजम्मुल के बेटे को 5,69,000, इसी तरह शहीद कांस्टेबल शबीर के बेटे को 2,96,000 मालियत का चेक दिया गया। एसएसपी उस्मान बाजवा का कहना था कि शोहदाए पुलिस और दौरान सर्विस विफात पाने वाले एहलकारों की फैमिलीज की फलाह व बहबूद को यकीनी बनाया जा रहा है। यूएमटी में सितारा हलाल फाउंडेशन के तहत कायद वीक की तकरीबात का आगाज हो गया है। इफ्तिताही तकरीब में बानी सितारा हिलाल फाउंडेशन और सदर यूएमटी इब्राहिम हसन मुराद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में सितारा हलाल फाउंडेशन के तहत कायद आज़म वीक की तकरीबात का आगाज हो गया। तकरीबात में असातिज़ा और तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। यूएमटी इंतजामिया के मुताबिक यौम कायद के मौके पर कायद वीक मनाने का मकसद नौजवानों में कायद आज़म की काविशों से मुतालिक शऊर उजागर करना है। तकरीबात 4 रोज तक जारी रहेंगी। कायद आज़म वीक के तहत यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ मिली नगमे, स्टेज परफॉर्मेंस और दीगर तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। सदर यूएमटी इब्राहिम हसन मुराद ने शुरा से खिताब करते हुए कहा कि पढ़े लिखे नौजवान बेहतर अंदाज में कायद के अफकार की तर्जमानी कर सकते हैं। हमें मिलकर अहद करना होगा कि पाकिस्तान के शहरी होने के नाते हम पाकिस्तान की अजमत और सलामती का भरपूर ख्याल रखें। अब आपके घर में आपके वालिदैन हैं तो आप उनसे मोहब्बत करते हैं, आप उसका इजहार भी करते हैं, लेकिन आप उनके लिए ऐसे काम करते हैं कि आपकी वजह से उनको कोई दुख ना पहुँचे। तो मुल्क से मैंने देखा कि हमें ओवरऑल सोसाइटी में कंट्री वाइड लोग मोहब्बत करते हैं, बेपनाह मोहब्बत करते हैं, लेकिन शायद उतनी नहीं करते जितनी करनी चाहिए। गुलशन रावी में मेंबर पंजाब बार कौंसिल बाबर वहीद के एजाज़ में ज़हराने का एहतमाम किया गया। ज़हराने का एहतमाम मलिक अदनान और एडवोकेट मियां हमजा मुस्तफ़ा की जानिब से किया गया। मेंबर पंजाब बार कौंसिल बाबर वहीद के एजाज़ में गुलशन रावी में ज़हराने का एहतमाम किया गया। ज़हराने का एहतमाम मलिक अदनान और एडवोकेट मियां हमजा मुस्तफ़ा की जानिब से किया गया। इस मौका पर सदर लाहौर बार एसोसिएशन के उम्मीदवार मलिक सरवर समेत वकला बरादरी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आगे बढ़ते हैं। डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर गेम्स के सिलसिले में मुनक्किदा आर्चरी इवेंट में गुलाम दस्तगीर ने कामयाबी हासिल कर ली है। आर्चरी खिलाड़ी कहते हैं अगर हुकूमत तवज्जो दे तो बैनुल अक़वामी मेडल जीत सकते हैं। पंजाब आर्चरी एकेडमी में होने वाले मुकाबलों में मर्दों, खवातीन और बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नन्हे बच्चों ने तीर अंदाजी में भरपूर महारत का मुजाहरा किया तो खवातीन निशानाबाजों ने भी टारगेट पर निशानेबाजी की और खुद को मनवाया। तीर अंदाजों का कहना था कि इन मुकाबलों में हिस्सा लेने की खुशी है। हुकूमत तवज्जो दे तो हम बैनुल अक़वामी सतह पर मेडल जीत सकते हैं। इसे हमें प्रमोट करना चाहिए, पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी इसे प्रमोट करना चाहिए, बहुत से प्लेयर्स को प्रेफर करना चाहिए। और मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया, दिस वन इज़ माय फर्स्ट कंपटीशन। ख्वाहिश है कि मैं इसमें आगे जाऊँ, ओलंपिक लेवल तक तो जाऊँ,
تو اس میں جو فوکس کی ساری بات ہے، فوکس اس میں اچھا ہونا چاہیے اور نشانہ ایم لینا چاہیے. ان کا انتظامیہ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے جو ہے وہ موقع فراہم کیا تاکہ ہم اپنی جو ہے وہ سکلز جو ہیں وہ ڈیولپ کر سکیں. تیر اندازوں نے کہا کہ اگر مناسب مواقع ملیں تو ہم ہیں. اسلامی روایات کے عکاس آرچری کے کھیل میں ہر عمر کے مرد و خواتین کی شرکت اس بات کی عکاسی کر رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان بین الاقوامی سطح پر آرچری کے میدانوں میں کامیابی حاصل کرتا دکھائی دے گا. کیمرامین زاہد شفیع کے ساتھ حافظ شہباز علی، سٹی 42. OTC لاہور چیلنج کپ ون ڈے کلب کرکٹ ٹورنامنٹ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکا ہے. ٹورنامنٹ کی سیمی فائنل لائن اپ مکمل ہو چکی ہے. کلب کرکٹ میں پہلی مرتبہ پنک بال کا استعمال کیا جائے گا. OTC لاہور چیلنج کپ سیمی فائنل مرحلے میں داخل ہو چکا ہے. گروپ اے سے لاہور یونائیٹڈ اور گولڈن سٹار، جبکہ گروپ بی سے کرکٹ سینٹر اور ٹاؤن شپ وائٹس کی ٹیموں نے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. لاہور کی کلب کرکٹ ٹورنامنٹ میں پنک گیند استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. چیئرمین ٹورنامنٹ کمیٹی لاہور چیلنج کپ ملک سجاد اکبر کے مطابق ٹورنامنٹ کے پہلے سیمی فائنل میں منگل کروس LCCA گراؤنڈ پر ٹاؤن شپ وائٹس اور گولڈن سٹار کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی. دوسرا سیمی فائنل جمعرات کروس لاہور یونائیٹڈ اور کرکٹ سینٹر کی ٹیموں کے درمیان کرکٹ سینٹر گراؤنڈ پر کھیلا جائے گا. ملک سجاد اکبر نے بتایا کہ ٹورنامنٹ کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ لاہور چیلنج کپ کے سیمی فائنل اور فائنل پنک گیم سے کھیلے جائیں گے. ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ لاہور کی کلب کرکٹ میں پہلا موقع ہے جب کسی بھی ٹورنامنٹ میں پنک گیند کا استعمال ہوگا. باکسر محمد وسیم نے لاہور قلندرز کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا اور قلندرز انتظامیہ سے ملاقات کی. باکسر محمد وسیم نے لاہور قلندرز کے ہیڈ آفس میں CEO عاطف رانا سے ملاقات کی. ملاقات میں محمد وسیم نے پلیئرز ڈیولپمنٹ پروگرام اور نوجوان کرکٹرز کو پلیٹ فارم مہیا کرنے کی تعریف کی. CEO عاطف رانا نے محمد وسیم کو لاہور میں پروفیشنل فائٹ جیتنے پر مبارکباد دی. اس موقع پر باکسر محمد وسیم کا کہنا تھا کہ لاہور قلندرز کی انتظامیہ سے مل کر بہت خوشی ہوئی. لاہور قلندرز کھیل کی بہتری کے لیے بہت کام کر رہی ہے. پاکستان میں باکسنگ کا بہت ٹیلنٹ ہے. پلیٹ فارم مہیا کرنے کی ضرورت ہے. خوشی ہوگی کہ لاہور قلندرز باکسرز کے لیے بھی آگے آئیں. CEO لاہور قلندرز عاطف رانا کا کہنا تھا کہ محمد وسیم پروفیشنل باکسنگ میں تیزی سے نام بنا رہے ہیں. محمد وسیم کی مزید کامیابیوں کے لیے دعا کو ہیں. محمد وسیم کے ساتھ مل کر باکسنگ کے لیے لاہور قلندرز کے پلیٹ فارم پر کام کریں گے. کچھ بات کرتے ہیں پریس کلب انتخابات 2021 کی. تو پریس کلب انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کی انتخابی مہم عروج پر پہنچ چکی ہے. لاہور پریس کلب میں کاغذات نامزدگی کا حصول اور جمع کروانے کے لیے گہما گہمی عروج پر ہے. کلب میں امیدواروں نے ڈیرے لگا لیے ہیں. ممبران اپنے اپنے امیدواروں کے حق میں نعرے بازی کرتے رہے. لاہور پریس کلب انتخابات میں جرنلسٹ پینل، پروگریسو لورز، پروگریسو رائزر پینل کے امیدوار میدان میں ہیں. سٹی 42 کے سینئر رپورٹر ظاہر چودھری بھی سیکرٹری جنرل کے امیدوار کے طور پر کلب انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں. سابق صدر ارشد انصاری اس مرتبہ بھی صدارتی امیدوار ہیں. سابق سیکرٹری جنرل بابر ڈوگر صدارتی امیدوار کے طور پر سامنے آئے ہیں. عبد المجید ساجد، زاہد عابد، رائے حسنین طاہر، زاہد شیروانی، ناشرہ عتیق بھی کلب دنگل میں شامل ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی.